بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں اور وہ اس پر ویڈیو بنوانا چاہے تو وہ اپنا واٹس ایپ نمبر کمنٹ میں دے دیں، میں ان سے رابطہ کر لوں گا۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ چودھری محبوب منیر گجر عرف بوبا گجر چک نمبر 65 جیم بے شمالی فیصل آباد کے رہنے والے تھے، جبکہ ان کی تاریخ پیدائش 1 جنوری سن 1987 کی تھی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم شکرگڑھ سے حاصل کی اور پولیس میں ملازم ہو گئے۔ چودھری محبوب گجر کے خاندان والے ضلع گرداسپور تحصیل بٹالہ کے گاؤں دوبرجی سے تعلق رکھتے تھے۔ چودھری محبوب کے دادا کا نام چودھری اللہ داد تھا، جبکہ دادا کے دوسرے بھائی کا نام چودھری علی احمد تھا۔ ایک بھائی گاؤں کے نمبردار جبکہ دوسرے پولیس انسپکٹر تھے۔ زرعی رقبے کے لحاظ سے پورے گاؤں کے برابر ان دونوں بھائیوں کی زمین تھی۔ چودھری محبوب گجر کے والد کا نام چودھری منیر احمد گجر ہے، جو کہ 5 بھائی تھے، جن میں سر فہرست چودھری نذیر ڈاکٹر، چودھری بشیر احمد ممبر، چودھری مجید احمد تھانے دار اور چودھری نصیر گجر تھے۔ محبوب گجر کے تایا جان کے بڑے بیٹے چودھری حنیف گجر، جو کہ ملتان کے رہائشی تھے، وہاں کے MN منتخب ہوئے تھے، جو کہ اپنے علاقے میں سیاسی و سماجی حوالے سے کافی مقبول تھے۔ چونکہ محبوب گجر کے بڑے تایا جان ڈاکٹر تھے، اس وجہ سے آج بھی ان کے خاندان کی مقبولیت اور معرفت علاقے میں ڈاکٹر برادران کے نام سے ہوتی ہے۔ چودھری محبوب گجر کے ننیال کے لوگ شکرگڑھ کے رہائشی ہیں۔ ان کے ننیال میں زیادہ معروف چودھری غلام فرید نمبردار اور چودھری لیاقت چیئرمین ہیں، جو کہ علاقے میں کافی رعب و دبدبہ رکھتے ہیں۔ چونکہ ان کے خاندان کے 8 افراد دشمنی کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ چودھری لیاقت چیئرمین کے ہاتھوں مخالف پارٹی کے لوگ قتل ہوئے تو ان کو قانونی طریقہ کار کے مطابق قید ہوئی۔ اس قید کے دوران چودھری لیاقت کی جیل میں چودھری الیاس جٹ بندیشا کے ساتھ ملاقات ہوئی، جو اس وقت جیل میں تھے اور ان پر قتل کا الزام تھا۔ چودھری لیاقت اور چودھری الیاس جٹ بندیشا آپس میں گہرے دوست بن گئے۔ عدالت کی طرف سے ان دونوں کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی، لیکن خوش قسمتی سے اس پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں دونوں کو رہائی نصیب ہوئی اور وہاں سے گجر برادری اور بندیشا برادری کا نہ ختم ہونے والی لازوال دوستانہ محبت کا سلسلہ شروع ہوا۔ چودھری الیاس جٹ نے اپنے حلقے میں موجود چودھری لیاقت چیئرمین کے عزیزوں کو اپنا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کیا۔ چونکہ چودھری محبوب گجر 5 بھائی تھے، جن کے نام بالترتیب چودھری صفدر گجر، جو کہ 280 بھینسوں کے ڈیری فارم کے مالک ہیں، چودھری رؤف گجر، وہ PTCL آفیسر ہیں، چودھری فاروق گجر مینیجر گڈز ٹرانسپورٹ سعودیہ میں ہیں، چودھری محبوب گجر پنجاب پولیس میں ملازم تھے اور چودھری ایوب گجر سپیریئر کالج کی کبڈی ٹیم کے کپتان تھے۔ 5 بھائی اپنے خاندان کا نام روشن کرنے کے لیے بھرپور محنت اور کوشش کر رہے تھے۔ چودھری الیاس جٹ نے حلقے میں چودھری محبوب گجر کے سیاسی اثر و رسوخ کو دیکھتے ہوئے ان کو اپنا ساتھ دینے کے لیے راضی کیا اور ان سے اور پورے حلقے کی عوام کا الیکشن میں ان کا ساتھ دینے کا عہد لیا، جسے چودھری محبوب گجر نے بخوبی نبھایا۔ تمام گاؤں نے محبوب گجر کی بے لوث محبت کو دیکھتے ہوئے اس کا خواب پورا کرنے کے لیے چودھری الیاس جٹ کا بھرپور ساتھ دیا اور چودھری صاحب کے متعلق خدشات ان کے ذہنوں سے دور کیے۔ چودھری الیاس جٹ کی انصاف پسندی کو اجاگر کیا اور ان کو حلقے سے کامیاب کرایا۔ چودھری محبوب گجر کی دلی خواہش تھی کہ ان کے خاندان کا کوئی فرد تحصیل چیئرمین کا الیکشن لڑے اور کامیاب ہو کر حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کروا سکے، مگر یہ خواب ادھورا ہی رہ گیا۔ سن 2018 کے الیکشن سے پہلے چودھری محبوب گجر کے چودھری الیاس جٹ بندیشا کے داماد ڈاکٹر نثار احمد اور چودھری الیاس جٹ کے بھتیجے چودھری عبد الرحمان بندیشا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔
क्योंकि दोनों एक ही घर के फर्द थे। सन 2018 के इलेक्शन में डॉक्टर निसार अहमद और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा में इख्तलाफात पैदा हो गए, जिससे दोनों ने अलग-अलग इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। इन दोनों में से सिर्फ एक को ही सपोर्ट किया जा सकता था। चौधरी महबूब गुज्जर की सपोर्ट से पूरे हलका NA 106 पर असर पड़ना था, इसलिए दोनों ही चाहते थे कि महबूब गुज्जर हमारी सपोर्ट करे। आखिर चौधरी महबूब गुज्जर ने डॉक्टर निसार अहमद को सपोर्ट करने का फैसला किया, जिसका चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा को बहुत नागवार गुजरा और उन्होंने महबूब गुज्जर को धमकियां देना शुरू कर दी। एक दो दफ़ा हलके के लोगों ने सुलह की भी कोशिशें की, जो फ़ायदामंद ना हुई। चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने अपने कुछ आदमी चौधरी महबूब मुनीर गुज्जर को मारने भेजे, जो पकड़े गए। उन्होंने बताया कि हमें चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने आपको मारने के लिए भेजा है। इसी दौरान चौधरी महबूब गुज्जर के गांव के कुछ लोग चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के साथ मिल गए। वो लोग चौधरी महबूब गुज्जर से हसद करते थे। चौधरी महबूब गुज्जर की इनसे कोई मुखालफत नहीं थी। उन्होंने महबूब की रोज़ाना की बुनियाद पर मुखबरी देना शुरू कर दी। अब चौधरी महबूब गुज्जर के ग्रुप ने फैसला किया कि अगर अब्दुर्रहमान बंदेशा लड़ाई से बाज नहीं आ रहा तो हम भी लड़ाई करेंगे। कुछ दिन बाद सन 2019 में चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा के गनमैन वारिस मसीह ने चौधरी महबूब की गाड़ी रोकने की कोशिश की, जिस पर चौधरी महबूब ने पिस्टल निकाला तो वो वहां से हट गया। इसके बाद चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने फ़ोन पर धमकियां देना शुरू कर दी, जिसका चौधरी महबूब गुज्जर ने भी इसी तरह जवाब दिया। दोनों में तल्ख कलामी बढ़ गई तो चौधरी अब्दुर्रहमान ने कहा कि मेरे गांव मदरसा स्टॉप पे आओ। चौधरी महबूब गुज्जर ने भी वैसा ही कहा और फ़ोन बंद करके अपने साथियों और भाइयों के साथ मदरसा स्टॉप आया। तो चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ने अपना एक बंदा मुखबरी के लिए वहां भेजा, जिससे चौधरी अब्दुर्रहमान वहां नहीं आए। इसी दौरान लोगों के सुलह के पैगाम आना शुरू हो गए और कहा कि शाम को सुलह होगी, जिसका चौधरी महबूब मुनीर गुज्जर ने यकीन कर लिया। इसी दिन शाम को गांव से निकले साथ में भाई चौधरी अयूब मुनीर, जिनकी तारीख पैदाइश 27 नवंबर सन 1991 थी और वो सुपीरियर कॉलेज में कबड्डी टीम के कप्तान थे। भतीजा तैयब मुबशर और एक गनमैन था। लैंड क्रूजर में बैठकर जो ही गांव से निकले तो गांव के एक बंदे ने मुखबरी कर दी, जिस पर चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा ग्रुप ने दरबार मोती साईं के करीब घात लगा लिया। जब चौधरी महबूब गुज्जर की गाड़ी वहां पहुंची तो चौधरी अब्दुर्रहमान ग्रुप ने गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। चौधरी अब्दुर्रहमान ग्रुप ने समझा कि गाड़ी में सब मारे गए हैं। जब चौधरी अब्दुर्रहमान गाड़ी के करीब आए तो चौधरी अयूब गुज्जर को गोलियां लगी हुई थी और वो शदीद जख्मी थे, तो उन्होंने चौधरी अब्दुर्रहमान पर भी फायरिंग कर दी। तो अब्दुर्रहमान ग्रुप ने फिर चौधरी अयूब पर फायरिंग की और इनको साथ नहर में फेंक दिया। इस तरह चौधरी महबूब गुज्जर, चौधरी अयूब गुज्जर और चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा इस वक़ूए में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। इस तरह हंसते बसते घर वोटों की वजह से उजड़ गए। चौधरी महबूब गुज्जर के 5 बच्चे यतीम हो गए और छोटे भाई चौधरी अयूब गुज्जर की सिर्फ 2 साल पहले शादी हुई थी और इनका एक ही बेटा था, जबकि चौधरी अब्दुर्रहमान बंदेशा अपने ख़ानदान का वाहिद चश्मो चिराग था। इसके बाद चौधरी महबूब गुज्जर के भाई चौधरी रऊफ गुज्जर उर्फ चेयरमैन ने अपने भाई का बदला लेने की ठानी। चौधरी अब्दुर्रहमान ग्रुप का एक बंदा इसी दिन गिरफ्तार हो गया था। इसको मारने की प्लानिंग की गई और ये फैसला हुआ कि जब अदालत जाएगा तो उस दिन मारना है, लेकिन उस दिन काला गुज्जर पुलिस ने असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया, जिसकी खबर मीडिया ने भी दी थी। वारिस मसीह जो इस केस का मरकजी मुल्ज़म था, इस पर कातलाना हमले किए गए, मगर वो खुशकिस्मती से बच गया। मुखालफिन ने भी जवाबी हमले किए। कुछ दिन बाद चौधरी महबूब गुज्जर और चौधरी अयूब गुज्जर के कत्लों में नामजद बिलाल चीमा कत्ल हो गए, जबकि तकरीबन 2 माह बाद गांव का मुखबर भी कत्ल हो गया। इसके बाद चौधरी महबूब गुज्जर के ग्रुप पर कत्ल, चोरी और डकैती के झूठे पर्चे दर्ज हुए और कोशिश की गई कि किसी तरह चौधरी रऊफ मुनीर गुज्जर
उर्फ चेयरमैन को रास्ते से हटाया जाए। मुखालिफ ग्रुप ने पुलिस से साजबाज करके चेयरमैन के घर और फार्म पर रेड किया। पुलिस चेयरमैन को पुलिस मुकाबले में मारना चाहती थी, जिसकी खबर लीक हो गई, जिससे पुलिस के साथ इनका तसादम शुरू हो गया, जिसमें एक बंदा आग में गिरने से जल गया और पुलिस के बंदे भी जख्मी हुए। पहले एक थाने की पुलिस थी, फिर 2 और थानों की पुलिस और एलीट फोर्स बुलाई गई, लेकिन चेयरमैन ग्रुप के बंदे पुलिस पर भारी पड़ रहे थे। ये तसादम तकरीबन 5 घंटे जारी रहा। इसकी इतला जब मीडिया और आला अफसरान को हुई तो उन्होंने मामला ख़त्म कराया। इस तरह मुखालफिन का मंसूबा नाकाम हुआ। अब चौधरी महबूब गुज्जर उर्फ बूबा गुज्जर ग्रुप की सरपरस्ती इनके भाई चौधरी रऊफ मुनीर गुज्जर उर्फ चेयरमैन ने संभाली है और मुखालफिन की नींदें हराम की हुई हैं। अल्लाह ताला मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाएं और हम सबको हदायत नसीब फरमाएं, आमीन। चुदराहट, ताकत का नशा, ख़ानदानी रंजिशें, सियासी अदावतें और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की अना वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी अना उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं, बाद में उनके ख़ानदानों का जो हाल होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। अपने प्यारों को खोने का दुख सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपने प्यारों को खोते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और इसी वजह से गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी भी दुश्मनी का बाइस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती है। हमारा मुआशरा ऐसी बेशुमार दर्द भरी दास्तानों से भरा पड़ा है, जिसमें दुश्मनियों की वजह से ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ चुके हैं, जिनमें बहुत से लोग कत्ल, जबकि कातलों से जेलें भरी पड़ी हैं। कत्ल को एक लम्हे का पागलपन करार दिया गया है। कत्ल के पीछे नफसियाती अवामिल भी हो सकते हैं और किसी खित्ते की रवायात भी। इस एक लम्हे के पीछे कोई हादसा, वाक़या या कोई और ही ड्रामा होता है, जिसके असरात अंदर ही अंदर काम कर रहे होते हैं। ज़िंदगी एक बार मिलती है, लिहाजा अच्छी और शराफत भरी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और दूसरों के काम आने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो अच्छे और शरीफ इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें, क्योंकि माँ की गोद को अवलीन दरसगाह कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।